پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے, کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے. اس ہفتے کا محاذ بارڈر کے نام, پاک افغان بارڈر کے نام. آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر خالد ایئر بیس کے الگ الگ ٹیمز کھڑے ہوئے ہیں. وہ ہماری رائڈ ہے, ابھی ہم نے اس جیٹ رینجر میں جانا ہے, وہ ادھر کھڑا ہوا ہے. 16 ڈویژن کہتے ہیں جی یہ جو ڈویژن ادھر لگتی ہے. اور اس میں جب وہ اٹیک ہوا تھا تو ہمارے جو یونٹس تھے, جو یہ کہانی لکھی ہوئی ہے فار دا ریکارڈ جو لکھی ہوئی ہے, اس میں 16 پنجاب ریجیمنٹ, 23 پنجاب ریجیمنٹ, 48 فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ, 26 کیولری کے جو جوان تھے, انہوں نے اٹیکرز کو, جو دہشت گرد تھے جنہوں نے 14 اگست کی رات کو اٹیک کیا تھا, انہوں نے ریپلس کیا. سب دہشت گردوں کو باہر ہی خالد ایئر بیس کے باہر ہی انگیج کیا اور باہر ہی مار دیا. 48 FF کے 7 لڑکے, 7 جوان شہید ہوئے تھے, اور انہی کے نام پہ آج یہ ہینگر اور یہ ایئر بیس قائم ہے. تھنگس آر فنکشننگ اسموتھلی. مین اس ایویشن بیس کے بہت سارے فنکشن ہیں. فوج آرمی ایویشن کو بھی سپورٹ کرتا ہے, منسٹری آف انٹیریئر کو بھی سپورٹ کرتا ہے. ادھر سے FC کے ایریل آپریشن بھی ہوتے ہیں, ادھر سے اینٹی نارکوٹکس جو منشیات وغیرہ پکڑتے ہیں لوگ, ان کے بھی آپریشن ہوتے ہیں. مگر مین جو کہانی ہے وہ ان جوانوں کے نام, 48 FF, 23 پنجاب, 16 پنجاب, 26 کیولری. یہ جو جوان ہیں, اگر یہ اپنی شہادتیں نہیں دیتے, we wouldn't be here, ہم ادھر ہوتے نہیں. ہم خالد ایئر بیس پہ ہی ہیں, اور you'll be surprised کہ یہ جو ہوائی جانور ہے یہ کیا ہے. یہ جناب آپ کا رشین ملٹری کا, سوویت ملٹری کا, بلکہ رشین بھی نہیں, یہ فیمس سوویت ریڈ اسٹار, ریڈ آرمی کا کیپچر ہوا جو میران شاہ سے 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک, جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں سوویت آرمی سے یہ Mi-35 کیپچر کیا تھا. ایبسلوٹ پیس. اس کا خالی راکٹ پاڈز دیکھیں آپ, یہ تو اس کا ٹینک ہے, خالی راکٹ پاڈز دیکھیں. گلبدین جو حکمت یار ہیں, فیمس بڑے مشہور افغان مجاہد کمانڈر, ان کا بڑا مشہور کوٹ ہے that we are not scared of the Russian army, we are not scared of the Russian state, but we are scared of Russian helicopters. یہ گلبدین حکمتیار نے آن دا ریکارڈ بولا ہوا ہے. اور ادھر کوئٹہ میں خالد ایئر بیس پہ آپ کے سامنے یہ کیپچرڈ, جس کی فورس لینڈنگ کروائی تھی پاکستانی ملٹری نے, فورس لینڈنگ کروائی تھی, آگے اس کے کینن لگے ہوئے ہیں. انبلیویبل مشین. یہ ایز اے ٹرافی, ایز اے پرائز پاکستان فوج کے اس آرمی ایویشن بیس پہ یہ Mi-35 کھڑا ہوا ہے. اس وقت جو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ جیٹ رینجر 206 ہے, فرنٹیئر کور کی اس کی مارکنگز لگی ہوئی ہیں. پائلٹ صاحب نے انسپیکشن کر لیا ہے, ہم ٹیک آف کرنے والے ہیں. ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ تھوڑا سا دور ہٹ جائیں سیفٹی کے لیے. FC بلوچستان کا یہ جیٹ رینجر 206 ویسے تو پرانا جہاز, 60s کی دہائی کی اس کی ٹیکنالوجی ہے, مگر رینجر کا کام ہے اسٹارٹ اپ ہو گیا. رینجر کا جو کام ہے یہ اسٹارٹ اپ ہو گیا, روٹر مارا ہے پائلٹ صاحب نے. جیٹ رینجر فرنٹیئر کور میں 2-3 کام کرتا ہے, اہم کام کرتا ہے. ایک تو بلوچستان میں جو فلائنگ ہے بہت مشکل ہے, کمپلیکیٹڈ ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, مگر سب سے بڑا صوبہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ادھر فلائنگ ہے اس میں ایکسٹریم ٹیمپریچر بھی ہے, ایکسٹریم آلٹیٹیوڈ بھی ہے, کوسٹل فلائنگ ہے, لو فلائنگ ہے, ہائی فلائنگ ہے, ڈیزرٹ فلائنگ ہے. جو جیٹ رینجر ہے ویسے تو ہے 86 میں ہمارے پاس انڈکٹ ہوا تھا, مگر آج کل کی جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس کے لیے اہم اس لیے ہے
کہ ایک تو یہ ریکانیسنس جو آپ جا کے جائزہ لیتے ہیں یا جاسوسی کرتے ہیں کسی آپریشن سے پہلے، ایک تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور دوسرا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو سینئر افسران ہیں ایف سی کے، ان کی ٹرانسپورٹ اور ان کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میکنزم کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے. 1.5 گھنٹے تقریباً اس کی آپٹیمل کیپیسٹی ہے، ویسے تو 2.5-3 گھنٹے چلتا ہے. 4 سے زیادہ لوگ اس میں ٹریول نہیں کرتے. ویپنز نہیں لگتے اس میں، مگر ویپنز یہ لگواتا ہے ایک آپریشنل ایریا میں. آج اس کی ہم اندر سے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا کام اندر سے کاکپٹ کیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ بلیلی، کشلاک ایٹسٹرا کر کے ہم جب چمن کی طرف تو رہے ہیں، مگر کدھر کدھر سے گزر کے جا رہے ہیں. ہماری جو پرواز ہے وہ شروع ہونے والی ہے. اس وقت جو گل مظہر ہیں، جو انچارج ہیں، کیپٹن ہیں، پائلٹ ہیں اس فلائٹ کے، وہ کلیئرنس لے رہے ہیں. ٹریفک کلیئرنس لینا ضروری ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو گیجٹس ہیں ان کو تھمز اپ دیا، گراؤنڈ کنٹرول کو، باقی جو لوگ ہیں. اس وقت کلیئرنس زمین سے اتنی ضروری ہوتی ہے. آج ویدر بہت اچھا ہے، بتایا جا رہا ہے ویدر بہت کلیئر ہے. اور میرے کانوں پہ جو میں نے ہیڈ سیٹ لگایا ہوا ہے، اس ہیڈ سیٹ سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ اپروول کی، اور کوآرڈینیٹس جو راستہ ہے جو لینے والے ہیں وہ دکھایا جا رہا ہے. ٹیک آف ہو گیا. یہ مناظر دکھاتا ہوں آپ کو کہ ہیلی کاپٹر سے ٹیک آف جب ہوتا ہے. پائلٹ صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ رائٹ پہ کنٹونمنٹ ہے، رائٹ پہ سٹی ہے، اور ہم اب آلموسٹ ڈیو ویسٹ 3 to 4 ڈگریز اپ ہم جا رہے ہیں. یہ اب ہماری جو ٹرپ ہے وہ تقریباً 50 منٹ کی ہے. اس ہائٹ پہ ابھی ہم ہیں جو آپ پائلٹ صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ رائٹ پہ ہمارے جو کوئٹہ کے مشہور جو ہنا لیک اور ہنا اڑک وغیرہ ہیں وہ ہیں. سامنے ہمارے بلیلی ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، پھر آگے چمن آئے گا، اور لیفٹ پہ پھر کوئٹہ کینٹونمنٹ، اور یہ پھر آگے فردر لیفٹ پہ کوئٹہ شہر ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وادی ہے، بہت خوبصورت، بہت بڑی وادی ہے، اور میری فیوریٹ وادی ہے پاکستان کی. میرا شہر ہے کوئٹہ. بٹ اوور آل آج کے محاذ کا جو مقصد ہے وہ بارڈر اور بارڈر مینجمنٹ کو سمجھنا ہے. ایک بہت متنازع ایشو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. جو چمن کا جو بارڈر ہے، بلوچستان کا بہت بڑا بارڈر لگتا ہے افغانستان کے 3-4 صوبوں سے. ہلمند، قندھار وغیرہ ساتھ لگتے ہیں، اور بھی لگتے ہیں اوپر شمال میں صوبے. پھر پاٹا کے بھی صوبے ڈیفینیٹلی لگتے ہیں ود افغانستان. تو جو متنازع بارڈر ہے اس کو سیکیور کرنا کہ کیا طریقہ کار ہے.
कैसे होगा। और ये जो दहशत गर्दी की जो मूवमेंट है, जो अफगानिस्तान में जो लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान से होती है और पाकिस्तान का जो क्लेम है कि अफगानिस्तान से होती है, ये एग्जैक्टली होती कैसे और इसे कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, ये आज का महाज है। पाकिस्तान को सिक्योर कैसे किया जा रहा है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो अनासर हैं उनसे प्रोटेक्ट कैसे किया जा रहा है, और ऑफकोर्स साथ साथ अफगानिस्तान की मदद कैसे की जा रही है कि इधर जो अनासर अगर हैं तो वो कैसे मूवमेंट करते हैं। जो स्टोरी है आज की स्टोरी सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है और ऑफकोर्स फिजिकल भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है समझना वो फिजिकल बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे है, और सबसे जो चैलेंजिंग बात है वो बलूचिस्तान की, वो उसका साइज है, उसका रकबा। एक तो इस सूबे को समझना, पहले इसे घूमना ही ठीक ठाक मसला है। 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे फ्रॉम ए टू बी जो हेलीकॉप्टर्स और एयर टाइम जो होता है वो लगता है। ह्यूज, बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल एक नाइटमेयर है बलूचिस्तान को घूमना और पेट्रोल करना और एक जगह से दूसरी जगह जाना। पहले तो ये चक्कर है, आप देख सकते हैं इतना। बस बॉटम लाइन बताने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान की जब सिक्योरिटी की बात हो और पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो तो वो दो बहुत अलग बातें हैं। बलूचिस्तान के अंदर अलग अलग इंसर्जेंसीज जो नॉर्थ में लगी हुई है, वो एक अलग नौयत की इंसर्जेंसी है जो ज़रब-ए-हज़्र के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे उनसे कनेक्टेड है। जो डेरा बुकरी साइड पे क्वेटा की मशरक़ी जानिब लगी हुई है, वो एक अलग किस्म की इंसर्जेंसी है। जो जनूब में तुर्बत, पंजगूर, आवारान साइड पे जो बलोच सब नेशनलिस्ट हैं, कौम परस्त हैं, वो अलग किस्म की उनकी आइडियोलॉजी है, वो अलग काम कर रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा इन अ वे कहा जाता है जो इंडस्ट्री है इस इलाके की, स्मगलिंग, वो जो इतना बड़ा चैलेंज आपको देती है। अकॉर्डिंग टू द नंबर्स आप बिलीव नहीं करेंगे, अफगानिस्तान से $300 बिलियन की जो स्मगलिंग है सालाना, ड्रग स्मगलिंग स्पेशली, $300 बिलियन, उसमें से 40 या 50% एस्टिमेट होता है कि इन इलाकों से, इन इलाकों से, इन डेसोलेटेड और डिफिकल्ट टू नेविगेट इलाकों से निकलती है। वो तो उसे चैलेंज करना और उसको कंट्रोल करना एक वो और ही बड़ी अंडरटेकिंग है। मगर अगर पाकिस्तान को संभालना है तो बलूचिस्तान को संभालना है, और अगर बलूचिस्तान को संभालना है तो पहले तो आपने उसे घूमना है, समझना है, सिक्योर करना है, देखना है और स्टेबलाइज करना है। और इस इलाके को आप देख सकते हैं, इस इलाके को भला कैसे स्टेबलाइज किया जाए, इधर कैसे चौकियां लगाई जाए, इधर कैसे इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन की जाए। बात शुरू होती है हमेशा शहरों से भी, मगर बात जो बाहर से जो प्रोटेक्शन है वो बॉर्डर से। ये जो आप देख सकते हैं मनाजिर, ये शीला बाग का इलाका है और सामने बिल्कुल मेरे सामने स्ट्रेट ऑलमोस्ट ड्यू नॉर्थ, वैसे तो वेस्ट है, ये खोजक टनल है। इंटरेस्टिंग कहानी है शीला बाग की और खोजक टनल की। शीला बाग एक डांसर के नाम पे ये पास ये जो शीला बाग है ये रखा गया। उसकी कहानी मैं कभी और सुनाऊंगा, बहुत पुरानी कहानी है, अंग्रेजों के ज़माने की कहानी है। मगर ये जो खोजक टनल है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल्स इन दिस रीजन, कनेक्टिविटी के लिए बहुत अहम है। चमन को कनेक्ट करता है मेनलैंड पाकिस्तान से और बलूचिस्तान को कनेक्ट करता है अफगानिस्तान ऑनवर्ड से। अब जो आजकल बात होती है सीपैक की और टापी वगैरह की, तो उसमें इसका रोल अहम है, आता है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड वगैरह की जो बात होती है बहुत सालों से अंडर यूटिलाइज था, और इंशाल्लाह जब हालात बेहतर होंगे
افغانستان اور پاکستان کے درمیان تو یہ اور بہتر طریقے سے یوٹیلائز ہوگا. مگر تقریباً 1880 کی دہائی یہ جو ٹنل ہے یہ بنایا گیا تھا اور 800 مزدور 800 سے زیادہ بلکہ جو مزدور ہیں وہ اس ٹنل کو بناتے ہوئے مارے گئے تھے. بلوچستان کی بہت کہانیاں ہیں. آج آپ کو اس کے مغربی حصے کی دکھاؤں گا اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے وادی چمن. اس کی اسٹریٹجک ویلیو ہے اس بارڈر کی بہت بہت ہے. شاید یہ جو آپ سامنے مناظر دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ شاید ون آف دا ورلڈز موسٹ امپورٹنٹ بارڈرز پاکستان اور افغانستان کا یہ مشہور اور تاریخی بارڈر جو یہ کھوجک پاس وغیرہ سے کنیکٹ ہوتا ہے. سامنے وادی چمن اور ایبسلوٹلی کرٹیکل. اس کی سیاسی ڈائمینشنز بھی ہیں, اس کی سماجی ڈائمینشنز بھی ہیں, اس کی دہشت گردی سے بھی اور اسمگلنگ سے بھی اور سیکیورٹی سے بھی اس کے کنیکشنز ہیں. بٹ آج آپ کو دکھائیں گے پہلی بار اور سمجھائیں گے کہ ایگزیکٹلی چمن کی بارڈر سیکیورٹی کی کیا امپورٹنس ہے اور ایف سی کا رول اس میں ایگزیکٹلی کیا ہے. لینڈنگ ہونے والی ہے. ٹچ ڈاؤن چمن. ہمیں ریسیو کیا کمانڈانٹ نے اور اب ہم آگے اسٹریٹ ٹو دا بارڈر چل رہے ہیں. اسٹے ود می. ٹھیک ٹھاک ہیں, ضمانت کیا حال ہے؟ بیوٹیفل, اٹس ویری ویل مینٹین سر. یہ کیا ہے سر؟ یہ ان پشتو وی سے کہ ڈیتھ بفور ڈسگریس. ٹھیک ہے, ڈیتھ بفور ڈسگریس. ویلکم ٹو دا چمن اسکاؤٹس. جی, یہ چمن اسکاؤٹس کا ہیڈ کوارٹر ہے, گراؤنڈ زیرو آف دا ایف سی اور پاکستان کے اس اہم ترین بارڈر سے. یہ پشتو میں جو لکھا ہوا ہے اس کی ٹرانسلیشن سمپلی یہ ہے کہ ڈیتھ بفور ڈسگریس. یہ اس کا مقصد ہے. ویری ویری پراؤڈ یونٹ ہے. وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, پاکستان فرسٹ, ڈیتھ بفور ڈسگریس. ویری ویری امپورٹنٹ فارمیشن. ان کے کافی سارے ان کے فنکشنز ہیں. پیس ٹائم میں کیا فنکشنز ہیں جو آج کل پیس ٹائم الحمدللہ لگا ہوا ہے, اور وار ٹائم میں کیا فنکشنز ہیں. فارمیشن کتنی بڑی ہے. لوکل جو ادارے ہیں, کسٹمز, این ایل سی, لیویز, ایف آئی اے, بارڈر مینجمنٹ کا جو میکنزم ہے, نادرا, لوکل انسٹیٹیوشن, اسمگلنگ, دہشت گردی اور آف کورس انلیگل امیگریشن جو افیکٹ کرتی ہے پاکستان کو. ایف سی کا اس میں کیا کردار ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہیڈ کوارٹر سے نکلتے ہیں, بارڈر پہ چلتے ہیں. ایف سی کا جو یونیفارم ہے ہمیشہ یہ ٹریڈیشنل ان کا جو سیریمونیل ہے, فیبولس. ہمیشہ سے ایف سی کا جو رول رہا ہے پاکستان کی بارڈر مینجمنٹ پہ, ویسٹرن بارڈرز پہ 2 ایف سی لگتے ہیں, بلوچستان اور کے پی میں. اور آف کورس جو ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ سے انہوں نے جو ٹریڈیشنل اپنا گاب ہے, ان کی جو ملیشیا شلوار قمیض ہوتی ہے اور جو آف کورس جو کلا ہوتا ہے, دیٹس آلویز بن اے اسپیشل تھنگ. یہ ان کا کامبیٹ یونیفارم نہیں ہے. آف کورس کامبیٹ یونیفارم کیا ہے وہ میں آپ کو بارڈر پہ جا کے بتاؤں گا, مگر کوارٹر گارڈ
का जो सेरेमोनियल रोल है, दहाइयों से नहीं बल्कि सिंस सेंचुरीज क्वार्टर गार्ड जो सलामी देता है और हमेशा मैन हुआ होता है। क्वार्टर गार्ड पे जो एफसी का जो जवान है, या आप किसी भी फौज के या पैरामिलिट्री के किसी भी क्वार्टर गार्ड पे चले जाएं, क्वार्टर गार्ड रिप्रेजेंट करता है उस इदारे की, उस यूनिट की अलर्टनेस को। वो कितने चाको चौबंद हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने वेल टर्न्ड आउट हैं। आई प्रेजेंट टू यू द एफसी क्वार्टर गार्ड। Very smartly turned out contingent of the FC quarter guard. The commandant is with us as well. और अब हम जा रहे हैं सर बॉर्डर पे। और सर सिंपली पुट, पाकिस्तान का जो ये चमन का बॉर्डर लगता है, उस तरफ अफगानिस्तान है, कंदहार है। सिंपली पुट, क्या स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है बॉर्डर की? बॉर्डर जो है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बड़ा पैसेज होता है, इसकी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है। इसमें से इंटरनेशनल लेवल की जो पैसेज है, नेटो, पाटा एंड ऑल दैट फ्लोज, ड्यू टू विच इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। और इसमें जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक गेट वे है, चमन इज़ अ गेट वे, और बहुत बड़ा एक ट्रेड का रूट भी है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में मिलाता है। कुछ मैट्रिक्स हम उधर भी देखेंगे, बट जो रिपोर्ट हुआ है, जो हमने सुना है, कस्टम रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं, ओवरऑल बॉर्डर पे इंसिडेंट्स कम हुए हैं, दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स कम हुए हैं, स्मगलिंग कंट्रोल हुई है। मेन स्ट्रीम में आपने लाने की कोशिश की है ऐसे एक इलाके को जिसमें स्मगलिंग इज सेकंड नेचर, किया कैसे है? सिंपली पुट, वो मेजर्स हमने लिए हैं। हमने बेसिकली तमाम जो स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैपेसिटी इश्यूज में उनको मुख्तलिफ तरीकों से मदद की है। उस मदद के तहत तमाम ने टीम वर्क के तौर पे हमने बेसिकली एक रोल अदा किया है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हमने लाई हैं। हमने मुख्तलिफ लेन्स क्रिएट की हैं। हमने मुख्तलिफ लोग जो कस्टम नहीं देते थे उनको मजबूर किया है कि वो कस्टम में जाएं, वरना हमारी डेफ पोस्टें जो हैं वो पीछे हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो उनको पकड़ती हैं। एंड फाइनली दे वर फोर्स टू transform their life into the legal ways. But challenges still persist on the border? Challenge is still there, and we are managing it, mashallah, and we are working on a correct line. Challenge, let's head to the border. Yes. वेलकम टू जीरो लाइन। पाक अफगान चमन और स्पिन बोल्दक बॉर्डर से खुशामदीद। मेरे लेफ्ट पे द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये जो आप मेन देख सकते हैं, ये पहले ऐसा नहीं था। 15 साल पहले जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की, मेरी पहली असाइनमेंट यूनिवर्सिटी के ज़माने में थी चमन को कैप्चर करना, उसकी स्टोरी सुनाना। 9/11 के बाद मैं आया था, बिल्कुल उस जमाने में लुट मची हुई थी, ओपन तकरीबन बॉर्डर था। आज फ्रंटियर कोर ने चैनल किया है। जो लोग जा रहे हैं, जिनकी पुश्त हमारी तरफ, ये पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं, जिनकी शक्ल हमारी तरफ है, ये अफगानिस्तान क्रॉस कर रहे हैं। ये एक तरीका है ऑन फुट, साथ साथ लेफ्ट पे ट्रैफिक लेन। दिन की तकरीबन 1000 गाड़ी जाती है और महीने के तकरीबन 2,500 से 3,000 ट्रक, इसमें नेटो सप्लाई ट्रक्स, इसमें जो आपकी पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड है उसके ट्रक्स, और रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रक्स जो हैं वो जाते हैं। पाकिस्तान का झंडा फ्लाइंग हाई, और रोज
हजारों की तादाद में बताया जा रहा है 15,000 पीपल 15,000 लोग इस कम से कम इस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। ये आपका ऑफिशियल बॉर्डर है। जो अनऑफिशियल जो पॉइंट्स हैं उन्हें एफसी कैसे चोक करता है, उन्हें ऐसे कैसे कंट्रोल करता है, उधर स्मगलिंग, दहशतगर्दी वगैरह जो इलीगल क्रॉसिंग होती है उसे कैसे कंट्रोल करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर आप देख सकते हैं कि खाली फेंस लगाने से कंट्रोल सिचुएशन नहीं होती। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये जो डिच बनाई गई है, ये जो खड्डा बनाया है, ये भी फ्रंटियर कोर ने रिसेंटली डिप्लॉय किया है। रेंज में ये वॉश आउट हो जाता है, इसे फिर पाकिस्तान खोदता है। अब जो आई गेस आप कह लें जो डिबेट चलती है वो ये चलती है कि पाकिस्तान सीरियस नहीं है, मगर ऑल दीज मेजर्स हैव बीन टेकन बाय पाकिस्तान। द डिचिंग, ये सीसीटीवीज लगे हुए हैं, ये बिल्कुल सामने, और ऑफ कोर्स द चैनलिंग। अब आपको अफगानिस्तान की सैर करवाता हूं। अफगानिस्तान का झंडा मेरे पीछे, और ऑफ कोर्स नेटो प्रेजेंस ऑन माय राइट साइड। और सबसे कहते हैं इस इलाके की सबसे बड़ी वेश मंडी, जिधर ज्यादातर जो ट्रेड होती है, वो इधर इन इलाकों में। अब द ट्रक्स आर कमिंग इन राइट से, मुझे उस तरफ से मना किया जा रहा है कि आप ट्रक्स ना दिखाएं। ट्रक्स राइट से आ रहे हैं और अंदर चेक होके ये पाकिस्तान की तरफ they're going there। और ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं, जो लोग इधर से लेफ्ट से मेरे आ रहे हैं वो अब इस तरीके से अफगानिस्तान की साइड से उस तरीके से जा रहे हैं। अब इधर से जो लोग जिनकी पुश्त हमारी तरफ है वो पाकिस्तान से निकल के अफगानिस्तान जा रहे हैं, और ये जो बाकी लोग हैं राइट साइड पे, राइट लेन में, ये पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। थिंग्स हैव गॉटन बेटर। और ये बाय द वे हमें बताया जा रहा है कि जब रश ज्यादा होता है तो ये डबल लेन्स फिर इस्तेमाल होती हैं। बट अगेन इधर हम क्यों आए आज का महाज बॉर्डर के नाम? क्योंकि इसेंशियली कहा जाता है स्ट्रेटेजिक वैल्यू इस बॉर्डर की बहुत है। अगर मैं आपको ऐसे शायद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर आप पाकिस्तान का मैप लें, बलूचिस्तान का मैप लें, और तो ये अफगानिस्तान लगता है, ठीक है जी। चमन ये है, कोयटा ये है, कराची इधर है, लाहौर इधर है, पेशावर इधर है, ग्वादर इधर है। मेन चीज जो है कि तकरीबन ऑल रोड्स जो पंजाब से, ऊपर से, कराची से, कोयटा से और ग्वादर वगैरह से, मेन जो आपका कनेक्शन है अफगानिस्तान का जो गेटवे है ये अफगानिस्तान है। हम इधर हैं। साथ आपका ऑफ कोर्स हेवीली कंटेस्टेड टेरिटरी कांदाहार, हेलमंद, बहुत डेंजरस वॉलेटाइल एरियाज अफगानिस्तान के आपके इस तरफ लगते हैं। स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत है। इस एरिया को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो इसकी इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। और ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं एफसी की नफरी बहुत बड़ी तादाद में एट वर्क। मगर जो मेन जो स्टोरी है वो मिलिट्री स्टोरी नहीं है। फौज में आपको दिखा दूंगा, एफसी दिखा दूंगा, सीसीटीवी दिखा दूंगा, नीचे अफगान ये जो बॉर्डर पुलिस है इनके लड़के दिखा दूंगा, ये बाब वायर दिखा दूंगा, झंडे दिखा दूंगा। मगर मेन स्टोरी जो समाजी स्टोरी है, जो सोशल स्टोरी है, वो एक्चुअली ये है। एक डिवाइडेड विलेज, एक ऐसा गांव जो आधा पाकिस्तान में है और आधा अफगानिस्तान में। मेन जो है वो चैलेंज दरपेश ये है। ऐसी फैमिलीज हैं इधर जिनके 6 भाइयों ने उस तरफ शादी की हुई है और 8 भाइयों ने इस तरफ शादी की हुई है। अब आप ऐसे विलेजेस को, और ये जो चमन स्काउट्स जो हैं जिनकी नफरी इधर लगती है, ये हमें बताते हैं कि 7 खाली इस इलाके में 7 विलेजेस हैं जो ऐसे डिवाइडेड हैं। ये दीवार एक ही गांव के अंदर से, ये आप देख सकते हैं, एक ही गांव के अंदर से लेफ्ट पे पाकिस्तान है, बीच में दीवार है, उस तरफ बाढ़ है, राइट पे अफगानिस्तान है। मेरे साथ विंग कमांडर वेस्ट ऑफ द 101 विंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? गुड मॉर्निंग। थैंक यू।
आपका क्या हाल है? ठीक है? मैं ठीक हूँ. क्वाइट अ चैलेंजिंग जॉब. वैसे कैसे करते हैं? हम भी इस इलाके के हैं, हम भी इधर बड़े हुए हैं. मैं आपको बता सकता हूँ कि इधर तो वे ऑफ लाइफ है, जिसे पूरी दुनिया या पाकिस्तान का आईन या आपका कानून स्मगलिंग कहता है. हमारे लोग जो इधर हैं वो तो दहाइयों से, सेंचुरी से वो से तिजारत कहते हैं. तो ये इन्हें मेन स्ट्रीम में लाना, इनको कंट्रोल करना, इनको बताना कि वक्त बदल गए हैं तो आप भी बदलें साथ साथ, और फिर उनको टैक्स करना जो आपने किया है, ये कैसे हुआ? ये हमने बेसिकली इसमें एफसी की और कस्टम्स वालों की आपस में बहुत ज़्यादा मशावरत के बाद लोगों के जरगे करके लोगों को कंसेशन पैकेजेस दे के, ताकि उनको थोड़ा सा रिबेट दिया जाए, ताकि वो अपनी तजारत को लीगल और टैक्स नेट के अंदर आना शुरू हों, और उनको इस टैक्स में और रेवेन्यू जनरेशन में उनके फ़वाइद उनको बताए गए कि आप जब यहाँ पे अगर लीगल तरीके से तजारत करेंगे तो उस लिहाज से आपको ज़्यादा मुनाफा होगा इससे कि जब आप स्मगलिंग की तरफ जाएं, जो कि लोगों ने फिर समझा और फिर लोगों ने ये इसको फिर रेवेन्यू जनरेशन में फ़ायदा हुआ इस इलाके को. राइट. नाउ ऑल्सो अब सिक्योरिटी भी, खाली मेन स्ट्रीमिंग नहीं, खाली इमिग्रेशन नहीं, खाली एंटी स्मगलिंग नहीं, मगर सिक्योरिटी भी एक अहम कंपोनेंट है. सिक्योरिटी थ्रेट कितनी है? आई मीन मैं जब आया था, मैं आपको अपना बताऊं, मैं आया था 2001 में. 9/11 के ऑपरेशन और इंड्योरिंग फ्रीडम इस तरफ शुरू हो रहा था. जो गोरी फौजें हैं वो इधर आना शुरू हो गई थी. मेरी पहली इंटरेक्शन इधर अफगान नेशनल आर्मी से नहीं, उस वक्त तो अफगान नेशनल आर्मी थी नहीं, नेटो फोर्सेस से हुई थी. अब क्या हालात हैं? क्या चीजें पैसिफाइड हैं? क्या थ्रेट कंट्रोल्ड है? क्या बातचीत बेहतर है? क्या टैंगो से, तालिबान वगैरह से, जो टीटीपी ग्रुप्स हैं, बाकी ग्रुप्स हैं, उनसे थ्रेट्स है? सिक्योरिटी क्या मैट्रिक्स है इस वक्त? बेसिकली सिक्योरिटी का आपको पता ही होगा, जो एफसी ने जो इधर मेजर्स लिए हैं, जिस तरह एंटी स्मगलिंग डिच बनाई गई है, फेंसिंग की गई है, बाकी सीसीटीवी कैमरा जिस तरह आप बता रहे थे, लोगों की डिवाइडेड विलेजेस वालों की रजिस्ट्रेशन की गई है, जिनमें तमाम लोगों का डाटा इकट्ठा किया गया है, जितने भी लोग बॉर्डर क्रॉस होते हैं उनका डाटा बनाया गया है. मगर फिर भी हम इलीगल इमिग्रेंट्स को और बाकी जो उनसे इस तरह के लोग जो अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं, तो रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 20 से 25 बंदों को हम एप्रीहेंड करके उनको एफआईए के हवाले करते हैं, और जो कि उनके ऊपर फिर एफआईआर और बाकी जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो उनके ऊपर करते हैं, और जो बाकी जो ब्लैक या ग्रे हों उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले करते हैं. तो ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और लोगों को पकड़ना, जो कि इस गलत किस्म का बंदा अगर कोई पाकिस्तान में एंटर हो रहा है तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि चलता रहता है. अच्छा, बात हो जाए अगर इनकी, जो हमारे भाईजान है नेक्स्ट डोर, इनकी बॉडी लैंग्वेज अभी मैंने देखी, थोड़ी सी टेंस लग रही थी. इनके साथ चीजें हॉस्टाइल हैं या नीम गरम हैं या ठीक ठाक हैं या ओके? नॉर्मल आप कह सकते हैं, बस ठीक, यानी इतना फौजी जुबान में नॉर्मल तो हमारी जुबान में एब नॉर्मल होता है. बस थोड़ा सा ठीक चल रहे हैं हमारे रिलेशनशिप, इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं हैं. बट इनकी भी बेसिकली इश्यूज इनकी ट्रेनिंग के हैं, क्योंकि ये दे आर नॉट दैट ट्रेन्ड एज कम्पेयर टू आर्मी और एफसी, तो वो थोड़े से इश्यूज की वजह से कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वरना एज सच कोई इतना इशू नहीं. और एंगेजमेंट्स कोई होती हैं? कोई मेरे एरिया में नहीं है, बट चमन स्काउट्स के एरिया में जो बाकी दूसरे विंग्स हैं वहाँ पे एक आधों का थोड़ा सा इंसिडेंट्स रहते हैं. Wes, I'll see you on the ground. Thank you for the tour and the access. Qaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah, overseeing one of the most important जो हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं इस खित्ते की, कहते हैं शायद दुनिया की भी बहुत जरूरी बॉर्डर क्रॉसिंग्स में से एक है. दो अहम ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे अलग होते हैं. अब कहते तो हैं हम एक दूसरे के भाई हैं, मगर बाकी भाई हैं. आप देखें, लेफ्ट पे किली जहांगीर का विलेज है और राइट पे अफगानिस्तान, और वही विलेज काटता है. लेफ्ट पे ये ट्रक्स आते हैं. इनकी बाय द वे इन की जो चेकिंग की जो सूरत हाल है वो भी एफसी ने जिस तरीके से उसे इम्प्रोवाइज किया हुआ है, जैसे एक जो इन ट्रकों से बहुत अरसे से थ्रेट रहा है, फर्टिलाइजर जो आता है, फर्टिलाइजर को चेक करने के लिए ऊपर आटा होता है या ऊपर चने होते हैं या ऊपर दाल होती है, नीचे फर्टिलाइजर होता है, स्मगल हो रहा होता है. अब वही बात है. अब देखें, ये राइट पे आप देख सकते हैं जो एक रॉड है जो जा रहे हैं, अब ऊपर आटा लग रहा है या आलू लग रहे हैं, नीचे अक्सर होता है कि फर्टिलाइजर जो है वो होता है. फर्टिलाइजर क्यों स्मगल होता है? एक तो लोकल मार्केट के लिए, बट वेरी इंपॉर्टेंटली फर्टिलाइजर
کی ایک جو ساخت ہے وہ استعمال ہوتی ہے آئی ڈیز میں، بموں میں امونیا نائٹریٹ بنتا ہے ان سے. تو ایف سی چیک کرتی ہے کہ افغانستان سے کوئی ایسا مال تو نہیں آ رہا جو ادھر آ کے جو یہ گھریلو ساختہ آئی ڈی جو بم ہوتے ہیں وہ نہ بنے. اور یہ چیزیں امپرووائز کی گئی ہیں، یہ چیزیں آن دا گو، ان کا کوئی سائنس نہیں ہے، ان کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جدھر ایف سی جاتی ہے اور بارڈر مینجمنٹ سیکھتی ہے. دیز آر ایشوز وچ دا ایف سی ہیز ٹیکن اپ کہ اس بارڈر کی سیکیورٹی جو بائی دا وے اتنا اہم ہے، پشتون بیلٹ کا سب سے سیکنڈ لارجسٹ شہر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویسے تو یہ خطہ گنجان ہے بٹ اوور آل اس علاقے میں جتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ بلوچستان میں اور کہیں نہیں ہوتا. سٹیکس بہت ہائی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو سیاسی مینجمنٹ ہے، ہمارے جو بھائی ہیں آن دی ادر سائڈ آف دا بارڈر، جو ہمارے جو افغان بھائی ہیں ان کو کنٹرول کرنا. اور آف کورس اس میں اور جو ساتھ ساتھ ایشوز ہیں، اسمگلنگ، نارکوٹکس، گنز، ایمونیشن رننگ، ہیومن اسمگلنگ، انلیگل امیگریشن، دہشت گردی، پولیو کنٹرول، بہت ساری چیزیں ہیں. بٹ اس بارڈر سے دو اہم ملک الگ بھی ہوتے ہیں اور جڑتے بھی ہیں.